Mr. Palawat, can you give our viewers a sense of where this cyclone is at this moment? At what speed is it coming towards the coast of Gujarat? Is the cyclone intensifying? Is it getting weaker? Where is it likely to make landfall? Could there be a last-minute change in the direction and the landfall area could change? See, Rahul, this cyclone is at present, it is packing up with a speed of say 80 to 90 knots, and it is around 250 kilometers away from Mandvi, and it is moving. Already it has recurved in northeasterly direction, and it will not going to make any track change now, because it will continue its movement towards Gujarat coast, North Gujarat coast, Northwest Gujarat coast, and adjoining parts of South Sindh. So the landfall will be around between 4 p.m. to 7 p.m. tomorrow, and at the time of landfall, the wind speed may be 130 to 140 km per hour. In gust, it may reach some for short duration of 150 km per hour. But it is now losing some of its strength, and it is going to make a landfall as a very severe cyclone. How does this compare with other cyclones that have hit the Western Peninsula recently? Is it worse, as bad, slightly less intense? Yes, if you see the Taukte cyclone, it is, we can say the 20 to 30 km per hour wind speed is less than that cyclone, and almost we can say 90 to 100%, 10% difference will be there. So it is slightly bigger than Taukte, but yes, the potential of damage is very high, because it will be entering with a speed of 140 to 150 km per hour, associated with strong, very heavy showers over right from Mandvi to Okha, Dwarika, and Kutch, Nalia, and parts of Badin, Karachi, Jacobabad, and Hyderabad in South Sindh. And after making landfall, it will get weakened, because moisture will cut off, and intensity of rain will continue to heavy to very heavy, but wind speed will die down, and while reaching over southwest Rajasthan and adjoining parts of southeast Pakistan, wind speed may be 70 to 80 km per hour, and rainfall will be heavy to very heavy over say Jaisalmer, Jodhpur, Barmer, Sirohi, Pali, Nagaur, all these areas. And thereafter it will continue its journey towards northwest India. So we'll keep coming back to you, Mahesh Palawat, for updates over the next several hours. I'm conscious of the constraints on your time, so I won't hold you back any longer. Thank you for joining us. I want to go across to Gopi Manyar. She's our bureau chief in Gujarat. She's been spending the last several hours looking at the preparations in the state. And I was seeing that report that you filed, Gopi, that people seem to be very worried. काफी डरे हुए हैं लोग. उनको लग रहा है कि आपदा आने वाली है. पहले भी उन्होंने देखा है किस तरीके के साइक्लोन इस इलाके में आए हैं. आपने पूरी स्थिति का मुआयना किया. आपके हिसाब से कितनी तैयार है इस वक्त गुजरात की सरकार साइक्लोन बिपरजॉय के लिए? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि साइक्लोन टकराने वाला है गुजरात तट से, ये अब फाइनल हो चुका है। और वैसे में गुजरात सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार जो सीएम डैशबोर्ड बनाया हुआ है, वहां से हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ कांटेक्ट में है। सुबह से लेकर शाम तक वो स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर बना हुआ है, वहां पे तैनात है। लगातार सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारा मुआयना किया जा रहा है। यहां तक कि जो 5 मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि अमित शाह भी इस सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं, यहां तक कि जो राजनाथ सिंह है वो भी लगातार जो तीनों डिफेंस एजेंसीज है उनके साथ लगातार संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि साइक्लोन जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर यहाँ पे लैंडफॉल कर रहा है। 1998 में इससे पहले एक लैंडफॉल हुआ था जो कंडला साइक्लोन के तौर पर था, और कंडला साइक्लोन जब यहाँ पे आया तो 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आज भी लोग उस बात को याद कर रहे हैं, 1998 को याद कर रहे हैं। जितने भी फिशरमैन से हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो फिशरमैन भी यही कह रहे थे कि 1998 में कंडला में जिस तरीके से साइक्लोन आया था, हम नहीं चाहते हैं कि उतनी जान हानि यहाँ पे हो, और इसीलिए वो लगातार जो उनका घर है उसे छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि फिशरमैन ऐसी कम्युनिटी है, लगातार समुद्र के साथ उनका काम रहता है, तो वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। वो आज
शाम को जब साइक्लोन विंड स्पीड बढ़ी, समुंदर की जिस तरीके से लहरें उठ रही थी, उसके बाद जो फिशरमैन है वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि कच्छ के लिए जो कलेक्टर है उन्होंने एक लेटर इश्यू किया है। कल कच्छ में जीवन जरूरियात की जो बेसिक चीजें हैं, दूध, पानी और मेडिसिन, इसके अलावा सारी चीजें कच्छ के अंदर बंद रहेगी। यानी कच्छ पूरी तरीके से कल एक दिन के लिए बंद रखा गया है। स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं आज से लेके 16 तारीख तक। और जब लैंडफॉल होगा तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो जखाव पोर्ट के पास होगा, और जखाव से लेके सिरक्रिक का इलाका। तो सिरक्रिक जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर आती है वहां पे बीएसएफ तैनात रहता है। ये पूरा दलदलीय इलाका है, तो वहां पे भी बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि लैंडफॉल वहां पे होगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा वहां पे होगा। तो बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जो रिस्टोरेशन प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा सबसे तेजी से हो, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मनसुख मांडविया को कच्छ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और कच्छ में मनसुख मांडविया ने आज कई अस्पतालों का दौरा किया है, क्योंकि कहीं इमरजेंसी सर्विसेज की अगर जरूरत होती है और मेडिसिन जैसे कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या है उसको लेकर एक पूरी मीटिंग वहां पे उनके मनसुख मांडविया के जरिए की गई। साथ ही जब साइक्लोन यहां से गुजर जाएगा उसके बाद किस तरीके से जो लाइफ है उसे नॉर्मल किस तरीके से किया जाए, उसको लेकर भी सारी चर्चाएं हुई है, सारी प्लानिंग की गई है। और खास करके इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किस तरीके से किया जाए उसको लेकर भी एक पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है।